Okay, so in the today's session, now we are going to talk about the frequency response analysis. So till now, whatever analysis in the stability domain we have done was basically in time domain. Or you can say basically we were using time dependent signals like step input signal, or you can say the ramp input signals, and we were taking the output of the system and analyzing what is the behavior of the system, whether the system is stable, unstable, whether it has how much damping it is having, okay, so on and so forth. But the point is कि जो भी analysis अभी तक हमने पढ़ा, which is maybe with the help of Routh and all that, whatever stability analysis till now we have done, उसकी एक basic requirement है which says that you should know the transfer function of the system very very accurately. Okay, but अगर प्रैक्टिकली कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नॉट नोन टू अस, इन दैट केस हाउ आर वी गोइंग टू एनालाइज कि सिस्टम कैसा है. Okay, so a very very powerful tool that we use in this kind of a situation when there is there is no transfer function available with us. In that case what we do is we take the frequency response. यानी हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम हमारे पास है उसको हम एक साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली आउटपुट पे भी हमें साइनोसॉइडल आउटपुट मिलता है जिसका एम्पलीट्यूड और फेज ये अलग होंगे. फ्रीक्वेंसी विल मैच विद द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और फिर उस साइनसॉइडल जो हमें आउटपुट मिला है विच इज एक्चुअली अ फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हम उसको एनालाइज करके सिस्टम की प्रॉपर्टीज को जज करने की कोशिश करते हैं. यानी कि हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली नाउ मीन्स, और हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में सिर्फ स्टेडी स्टेट पार्ट पे फोकस करते हैं. वी डोंट कंसिडर द ट्रांजिएंट पार्ट बिकॉज ट्रांजिएंट पार्ट इवेंचुअली डाइज आउट. ओके, विच इट्स ट्रांजिएंट पार्ट जो होगा उसमें थोड़े बहुत कुछ हार्मोनिक्स वगैरह हो सकते हैं विच इवेंचुअली डाइज आउट, एंड फाइनली इन द स्टेडी स्टेट हमें एक सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिल जाता है जिस फ्रीक्वेंसी का हमने इनपुट दिया था. ओनली इट विल बी चेंज्ड इन एम्पलीट्यूड एंड फेज. जैसे आपने अगर साइन ओमेगा टी दिया तो यू माइट ऑब्टेन समथिंग एज ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके, एट द आउटपुट. So that kind of an analysis when we do, in that case we only focus on the steady state, we don't focus on the transient part. Okay, so that this kind of an analysis that we do, that means how the system is behaving in response to a sinusoidal wave. Sinusoidal is a frequency signal, okay, frequency dependent signal. That analysis is actually called as frequency response analysis. And one of the important benefits of frequency response analysis is that we need not know the transfer function of the system. Okay, of course, if we know the transfer function, we can do the both time analysis as well as frequency analysis. But if we don't know the accurate transfer function, then in that case, practically available system ka hum frequency response nikal kar, we can even identify the transfer function from them, or we can actually identify the properties of the system from there, whether the system is stable, unstable. Okay, then there is another concept of relative stability coming into picture जब हम frequency response की बात करेंगे, जिसमें हमें ये पता चलेगा up to what extent is the system stable in terms of gain. यानी कि कितना gain अभी मैं और बढ़ा सकती हूँ so that the system doesn't go into unstable category, जिसे हम कहते हैं gain margin. या अगर सिस्टम अनस्टेबल हो गया है तो मुझे कितना गेन कम करना चाहिए so that the system comes back to the stable category. So these are all this is called gain margin. ये terms होते हैं relative stability को define करने के लिए, और ये relative stability के जो terms हैं, this comes from the frequency response of the system. Okay, so let us see what is frequency response analysis. Now, frequency response of a system can be defined as the steady state response of the system to the sinusoidal input signal. The output of the system in this case is a sinusoid that differs the input only in amplitude and phase. That means the output that is going to come is going to be same in frequency as the input, but different in case of amplitude and phase. So hence we substitute S is equal to j omega for the steady state analysis in case of frequency response.
The basic requirement in the time domain methods like Routh-Hurwitz and root locus is that the accurate transfer function must be known. This might not be the case in many practical systems, and in such cases, the response of open loop system can be obtained experimentally. जब हम transfer function की बात करते हैं, तो transfer function से हम closed loop भी निकाल सकते हैं, open loop भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास transfer function available नहीं होता है, आप सिस्टम को इनपुट दोगे और उसका आउटपुट रिकॉर्ड कर लोगे, तो वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है that helps us in identifying the open loop properties. और ब्यूटी बोडे प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट की ये होती है कि हम उन ओपन लूप ग्राफ से, ये दोनों ग्राफ हमेशा ओपन लूप पे बनाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखो। जब हम राउथ हर्विट्ज की बात कर रहे थे, हम क्लोज लूप में चले जाते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे, क्लोज लूप में काम करते थे। लेकिन जब हम बोडे और नाइक्विस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये प्लॉट हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या ओपन लूप सिस्टम के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसमें से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्लोज लूप सिस्टम के बारे में होती है। Okay, so in such cases, the frequency response of the open loop system can be obtained experimentally. The beauty of open loop frequency response analysis is that we get the information about the relative stability of the closed loop system from any of these plots. So we are using the open loop frequency response, but this relative stability की जो information हमें मिल रही है, वो closed loop system के लिए मिलती है। The open loop transfer function GSHS is a complex quantity having both phase and gain. Of course, now we know जब आप S is equal to j omega कर दोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये complex quantity बन जाएगी। J आ गया, इसका मतलब imaginary part picture में आ गया है, तो it is going to become a complex quantity. तो जैसे complex number होता है, उसका कुछ magnitude होता है, कुछ phase होता है, तो उसी तरह अब हमारे transfer function का कुछ magnitude भी होगा, ये जिसे हम gain बोलते हैं, और कुछ उसका phase angle भी होगा। And the stability of the closed loop system depends upon these two factors, that is the gain and the phase of the system. और gain margin और phase margin दो ऐसे quantities होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कितने extent तक हमारा system stable है या कितने extent से beyond हमारा unstable हो गया है, हमें कितना इसको वापस लाना चाहिए, कितना कम करना चाहिए gain को, so that it becomes stable again. तो वो जो relative information हमें मिलती है, that is called relative stability, and the parameters of relative stability are gain margin and phase margin. Right? So the plots obtained from the frequency response, that is like you have Bode plot, polar plots, Nyquist, etc. They give us the information of the relative stability in terms of gain margin and फेज मार्जिन। तो इनका जो एक्चुअल पर्पस होता है ड्रॉ करने का, वो यही होता है कि उसमें से हमें ये गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एंड वी कम टू नो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। नाउ हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस इन द बेटर फॉर्मेट? Some queries that arise when discussing the stability of the feedback control system could be, if the system is stable, then by how much stable it is. That means how much gain can we increase before the system goes into instability. Similarly, if the system is unstable, then by what margin? That means to make the system stable, by what margin the gain should be reduced. So this particular margin is actually called the gain margin. Similarly, phase margin. गेन का जो बाउंड्री होती है, गेन जो सिस्टम का जो गेन है, दैट एक्चुअली शुड मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1, ओके, एंड जो इसकी फेज की बाउंड्री होती है वो होती है -180 डिग्री। वो भी अभी आई एक्सप्लेन हाउ इट इज -180 डिग्री। लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन होती है जिससे कि हम मेजर करते हैं, हमारा मैग्नीट्यूड सिस्टम का 1 होना चाहिए। हम सिस्टम का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, ओपन लूप मैग्नीट्यूड, और हम ये देखते हैं कि वो 1 से कम है तो कितना कम है, और अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। That gives us the gain margin. Similarly, phase margin, -180 डिग्री से हमारे सिस्टम का फेज कितना कम है, कितना ज्यादा है, that gives the positive or the negative phase margins. ठीक है? So basically these are the two things. अब पूरे frequency domain analysis में हम basically gain margin और phase margin के terms में ही system के stability की बात करते हैं, which gives us the relative stability of the system. Now, from where this condition we are getting, for example, you know that the closed loop characteristic equation जो satisfy करती है condition को,
यानी कि हम क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, दैट इज 1 प्लस GS into HS is equal to 0. That means GS into HS should be equal to -1, right? तो ये हमारी ओपन लूप की इक्वेशन हो गई, क्योंकि GS into HS is actually ओपन लूप. इसमें जो H है वो फीडबैक में लगा हुआ है और G जो है वो फॉरवर्ड पाथ में लगा हुआ है. तो अगर हम ओपन लूप गेन देखें सिस्टम का, that will be G multiplied by H. Okay, so if 1 plus GS HS is equal to 0, then we from here we know that GS into HS should be equal to -1. तो अगर हम इसका मॉड ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें इसका, तो वहां से हमें पहली कंडीशन मिल जाती है, that is the mod or the magnitude of GS into HS should be equal to 1. क्योंकि जब हम मॉड ले लेंगे तो माइनस साइन नेग्लेक्ट हो जाएगा. That means the magnitude of this system should be equal to 1. And the phase condition says that the angle should be equal to -180 degrees. Now let us see the explanation for this -180 concept. So the objective of the frequency domain analysis is to find the stability of the closed loop system from the open transfer function in a steady state by assigning G into S is equal to J omega and checking whether the system is giving us the satisfactory conditions or not. यानी कि हम क्या करते हैं, हम सिस्टम में S is equal to J omega सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको सॉल्व करके ये चेक करते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है और हमारा जो फेज है वो कितना आ रहा है, और क्या हमारा फेज और एंगल उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर गेन और फेज मार्जिन हमारी बाउंड्री लिमिट के अंदर है, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल है. अगर गेन फेज मार्जिन उस लिमिट से बाहर चले जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा सिग्नल जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा. सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस. अब देखो -180 वाला कॉन्सेप्ट कहां से आता है. सपोज दिस इज व्हाट द सिस्टम वी हैव. Okay, in the forward path we have GS and in the feedback loop we have HS. तो इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो होगी 1 plus GS into HS, बट ओपन लूप गेन जो होगा दैट विल बी GS into HS. ठीक है, now let us see what we are going to do. We will regard the pulse as essentially half of the sinusoidal signal at a particular frequency. अब हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की पल्स देते हैं एज एन इनपुट. ओके, और वो पल्स हमने किस फॉर्मेट में दी, हाफ साइनोसॉइडल सिग्नल. हाफ साइनोसॉइडल सिग्नल कैसा होता है, यू कैन सी द फर्स्ट फिगर, दैट इज द इनिशियल इनपुट. तो अगर मैंने इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक पल्स दी which is actually a half sinusoidal signal of some particular frequency, तो सिस्टम को क्या करना चाहिए such that the system is at a margin of stability. ठीक है, let us see. Now this pulse will pass through GS and give an output which is then fed back through HS. Suppose it arrives back with amplitude unchanged from that of the input, but with a phase such that when it is subtracted from zero input signal, we have a resulting error signal which just continues the initial half rectified pulse. देखो, जब तक वो पल्स फीडबैक में वापस आई, जब तक हमारे पास पल्स जो है, हमने एक इनिशियल पल्स दी, वो जीएस में से ट्रैवल करेगी, आउटपुट पे जाएगी, फिर क्योंकि हमने फीडबैक लूप बना रखा है तो फीडबैक में से वो वापस आएगी एच के थ्रू होते हुए वापस हमारे एरर सिग्नल, हमारे इनपुट के साथ हमें उसे कंपेयर करना है और फिर वो कुछ एक एरर सिग्नल जनरेट करेगा. अब क्या हुआ कि इनपुट इन दैट मेन टाइम, क्योंकि हमने तो एक पल्स दिया सिर्फ उसे, ठीक है, जब तक वो वापस आई तब तक हमारा इनपुट जो है वो 0 हो चुका था. If you see over here, ठीक है. अब हम क्या चाहते हैं, इफ यू रिमेंबर द मार्जिनल स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है कि एक सस्टेन्ड ऑसिलेशंस क्रिएट होनी चाहिए. यानी कि अगर ये पूरा जो सिस्टम है जीएस और एचएस वाला, अगर ये मार्जिनली स्टेबल है तो इसके आउटपुट पे एक, या इसका जो एरर सिग्नल जो जनरेट हो रहा है ये एक सस्टेन्ड ऑसिलेशंस वाला सिस्टम बनना चाहिए. तो अगर मैं ये देखूं कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन कैसे बनेगी, मैंने इनपुट पर एक इनिशियल इनपुट दिया था, जब वो पूरे सिस्टम से ट्रैवल होकर वापस आएगा, अगर उस समय ये आउटपुट 0 हो चुका है
कुछ ऐसा फीडबैक आए मेरे पास कि वो इसकी सेकेंड हाफ साइकिल को कंप्लीट कर दे, ठीक है, तभी मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कंप्लीट एक वेव बना पाऊंगी, ठीक है। और अगर ये पैटर्न टाइम के साथ रिपीट होता चला जाएगा तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिल रही है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मेरा जो इनपुट गया था वो वापस जब फीडबैक में आएगा तो उस समय इट शुड गिव मी अ फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्रीज, यानी उसमें फेज शिफ्ट होना चाहिए 180 डिग्रीज इन माइनस डायरेक्शन। तो वो क्या बन गया, वो एक इक्वल एम्पलीट्यूड की पल्स बन गई इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि उसमें एक फेज रिवर्सल क्रिएट कर दिया हमने ऑफ 180 डिग्रीज। अब जब ये दोनों सिग्नल्स को अगर आप आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास एक इस तरीके की सिग्नल जनरेट होके आ जाता है। यही पर्टिकुलर अगर टाइम के साथ दिस, अब मैं थोड़ी देर आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड मैं फिर एक इनपुट पल्स दूंगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर एक फेज रिवर्सल -180 का पल्स आएगा। तो ये कंटिन्यूअसली क्या बन गया, एक सस्टेन्ड ऑसिलेटरी पैटर्न बन गया। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा सिस्टम मार्जिनल स्टेबिलिटी की कंडीशन पर है, ठीक है, प्रोवाइडेड के दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, इन दोनों का जो फीडबैक से सिग्नल आया और जो मैंने इनपुट में दिया था, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहे। इसका मतलब नट शेल में GS इंटू HS के जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं वो 1 होने चाहिए। अगर 1 होंगे तभी एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। इसका जो गेन है वो मेरे इस पर्टिकुलर पल्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा। जैसे अगर सपोज G में 5 है तो वो क्या होगा, जिस एम्पलीट्यूड से मेरा सिग्नल गया था वो 5 से मल्टीप्लाई होके आउटपुट पे मुझे मिलेगा। तो GS और HS दोनों का जो नट शेल में गेन है, अगर वो 1 होगा तो सेम एम्पलीट्यूड मुझे वापस मिल जाएगा जिस एम्पलीट्यूड से मैंने इनपुट वेव भेजी, ठीक है। और फेज रिवर्सल 180 डिग्रीज का मुझे चाहिए ताकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाकर मेरी एक साइन पल्स को कंप्लीट कर दे। और जब यही पैटर्न टाइम के साथ रिपीट होता जाएगा तो एक सस्टेन्ड ऑसिलेशंस क्रिएट हो जाएंगी, जिसको कि मैं मार्जिनल स्टेबिलिटी कंडीशन कहते हैं। अब अगर मेरा जो ऑसिलेशन है, अगर मैं क्या करती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा गेन जो है वो 1 से कम होगा तो क्या होगा कि ये जो नीचे वाली जो पल्स आएगी, जो सेकंड साइकिल मेरे पास आएगी, ये हमेशा मैग्नीट्यूड में कम होगी एज कंपेयर टू द इनिशियल इनपुट, और वो कम होते होते इवेंचुअली इट इज गोइंग टू डाई आउट। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम कंप्लीटली स्टेबल है, ठीक है। इसका मतलब ऑसिलेशन एट सम पॉइंट वो डाई आउट हो रही है या किसी एक पॉइंट पे अगर सेटल हो जाती है तो हम कहते हैं कि सिस्टम स्टेबल है। अगर मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा हो गया, अगर मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा हो गया, तब क्या हो रहा है कि वो मल्टीप्लाई होके हर बार जब मेरे पास सिग्नल आएगी तो हर बार उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा और वो एक अनस्टेबल कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग वी गेट दीज टू कंडीशंस कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिग्नल के केस में जब भी मैं एक पल्स देती हूं इस पर्टिकुलर सिस्टम को, तो ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GS into HS, दिस शुड नॉट वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ माई सिग्नल, यानी कि GS और HS का नट शेल में मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए, और जो उसका फेज कंट्रीब्यूशन है वो GS और HS का इट शुड गिव मी अ फेज रिवर्सल ऑफ -180 डिग्रीज। अगर ये होता है तो मेरा सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी की बाउंड्री कंडीशन पर बैठा हुआ है। तो 180 से कम होगा तो वो चलेगा, 180 से ज्यादा होगा तो इट बिकम्स अनस्टेबल। तो हम -180 जो कैटेगरी होती है, जो पॉइंट होता है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट, और हम सिस्टम का फेज उस -180 डिग्री से कंपेयर करके निकाल लेते हैं कि हमारे सिस्टम का फेज मार्जिन कितना है। ऐसे ही 1 के साथ हम कंपेयर करके निकालते हैं कि सिस्टम का गेन मार्जिन कितना है। एंड दिस गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन एक्चुअली गिव अस a concept of relative stability of my system under frequency dependent signal, ठीक है। तो उसको गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के साथ साथ हमने अब, क्योंकि अब ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट आउटपुट मिलेगा आपको, आउटपुट पे भी जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। तो हमने what we are seeing is हमने दो और quantities define करी। One is called phase crossover frequency. Now the phase crossover frequency is the frequency at which your phase angle first reaches -180 degrees.
तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका जो सिस्टम है उसका फेज 180 पे पहुंच गया है, दैट बिकम्स फेज क्रॉसओवर। यानी इस फ्रीक्वेंसी से जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आप 180 के बियॉन्ड चले जाओगे, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे पास एक गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होती है, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारे सिस्टम का ओपन लूप गेन पहली बार 1 को टच करता है, दैट इज कॉल्ड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसके बियॉन्ड जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वो 1 के बियॉन्ड चला जाएगा आपका गेन और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम ये 4 टर्म्स डिफाइन करते हैं। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, that is the frequency at which the phase angle of your open loop transfer function first reaches minus 180 degrees. Gain margin, this is the factor by which the gain must be multiplied at the phase crossover to have the value 1. ये अभी आपको मैं फिगर से बताती हूँ what does it mean. Then we have gain crossover frequency. This is the frequency at which the open loop gain first reaches 1. That frequency is called gain crossover frequency. And phase margin, this is the number of degrees by which the phase angle is smaller than minus 180 degrees at the gain crossover frequency. अब ये थोड़ा सा जैसे for example देखो, a good stable control system usually has typically an open loop phase shift of between minus 115 to minus 125. Okay, when the gain is 1. तो अगर आप इसका फेज डिफरेंस निकालोगे, इसको माइनस 180 से अगर आप कंपेयर करोगे, सो देन यू आर गोइंग टू गेट अ फेज मार्जिन ऑफ से 45 डिग्रीज। अगर आपका माइनस 115 है फेज शिफ्ट एंड द आइडल इज माइनस, बाउंड्री इज माइनस 180 डिग्री, दोनों के बीच का डिफरेंस है 45 डिग्रीज। ओके, सो 45 डिग्रीज का मतलब हुआ that 45 degrees phase margin means your system is 45 degrees well inside the stability boundary. अगर यही माइनस 45 डिग्रीज हो जाएगा तो सिस्टम आपका 45 डिग्रीज अबव द स्टेबिलिटी कंडीशन चला गया है, सिस्टम अनस्टेबल हो गया है बाय अ फेज मार्जिन ऑफ 45 डिग्रीज। ओके, सो लाइक दिस वी मेजर द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। नाउ बोडे प्लॉट और नाइक्विस्ट हम दो चीजें जो पढ़ने वाले हैं, आई हैव जस्ट शोन अ ग्लिम्स ओवर हियर। बोडे प्लॉट कुछ इस तरह का प्लॉट होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्राफ्स। वन इज द गेन और यू कैन से द मैग्नीट्यूड ग्राफ एंड वन इज द फेज ग्राफ। एंड ये एक्स एक्सिस जो है, दोनों पर इस एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है और हम फ्रीक्वेंसी को लॉगरिथमिक स्केल में डिपेंड शो करते हैं, क्योंकि लॉग स्केल में हम एक बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एक सेम एक्सिस पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि लॉग के टर्म्स में हम ओमेगा को लेके चलते हैं, और वाई एक्सिस पर हम एक ग्राफ में गेन लेते हैं यानी कि मैग्नीट्यूड, और दूसरे हम एक्सिस पर हम फेज लेकर चलते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, और ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, ये मेरे सिस्टम का ग्राफ है। जो भी मेरे पास को ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है उसके ऊपर जब मैं अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड इनपुट लगाती हूँ तो ये कुछ ऐसे ग्राफ्स आते हैं मेरे पास। ये ऐसा स्लोप हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्लोप्स भी हो सकता है, जो हम कल पढ़ेंगे कि ये हम कैसे प्लॉट करते हैं। पर कुछ इस तरह का ग्राफ उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम बनाते हैं। अब हमें दो चीजें चेक करनी होती हैं कि मेरा जो गेन वाला ग्राफ था वो जीरो लाइन को कब क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ये डीबी में है। मैग्नीट्यूड 1 जो है वो यहाँ पर डीबी में जब हम लेते हैं, तो इसका भी एक प्रूफ मैं आपको कराऊंगी। It corresponds to the 0 dB line in this graph. Okay, the condition magnitude equal to 1 जो हमने पढ़ा था, that actually corresponds to 0 dB in this particular graph, and phase of course is minus 180 degrees. तो हमें ये चेक करना है, जब हमारा मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना तो वो 0 dB लाइन को किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे टच करता है। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज कॉल्ड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमारा गेन स्टेबिलिटी कंडीशन को क्रॉस कर गया, तो इसे हम कहते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी पर मेरा सिस्टम का जो मार्जिन था एज कंपेयर टू माइनस 180 डिग्री, उसे हम फेज मार्जिन कहते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे ध्यान रखो। फेज मार्जिन हमेशा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे मेजर किया जाएगा और फेज गेन मार्जिन जो होगा
वो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे मेजर किया जाएगा। ये हमेशा क्रिस क्रॉस मेजरमेंट होता है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मेरे सिस्टम का जो बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो 0 dB लाइन को क्रॉस करता है। वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग -180 से कंपेयर करके मेरे सिस्टम में कितना फेज डिफरेंस था। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं यहाँ पर देखूं तो अगर जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा, सपोज दिस इज सपोज -125, ओके, या -115, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो बीच का डिफरेंस है, ये जैसे पीछे हमने देखा या तो 45 होगा या 65 होगा रिस्पेक्टिवली, जो भी हम यहाँ वैल्यू देख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 180 डिग्री से मेरा कितना फेज डिफरेंस बन रहा है, दिस इज फेज मार्जिन। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारी लाइन है -180 डिग्री, और इस पर्टिकुलर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर यहां पर कहीं पर मेरा फेज आ रहा है सिस्टम का। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा फेज मार्जिन है। ठीक है, तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मेरे सिस्टम का जो फेज है वो -180 डिग्री से कितना डिफरेंस पे है, दैट गिव्स मी द फेज मार्जिन। जब तक ये 180 के अंदर होगा, आई हैव पॉजिटिव फेज मार्जिन। अगर ये 180 के बियॉन्ड चला जाएगा, दैट क्रिएट्स नेगेटिव फेज मार्जिन। और नेगेटिव फेज मार्जिन इज अनस्टेबल सिस्टम। Positive phase margin is stable and negative phase margin is unstable. ठीक उसी तरह जब मैं फेज का प्लॉट बनाती हूं अपने सिस्टम का, तो मुझे ये चेक करना है कि ये 180 डिग्री को कहां पर जाकर क्रॉस कर रहा है। ये सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, जहां मेरा पॉइंटर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे सिस्टम का फेज का जो प्लॉट है वो -180 डिग्री लाइन को क्रॉस कर रहा है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मेरा सिस्टम फेज की बाउंड्री कंडीशन को क्रॉस कर गया है, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मेरा गेन कितना है वो मिल जाता है गेन मार्जिन। यानी कि 0 dB लाइन से कितना मेरा मार्जिन है यहाँ पर, दिस इज गेन मार्जिन। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम फेज मार्जिन को मेजर करेंगे, और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम गेन मार्जिन को मेजर करेंगे। जब हम कल बोडे प्लॉट बनाएंगे तब हम देखेंगे दोनों मार्जिन अगर पॉजिटिव होते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है, दोनों मार्जिन अगर में से कोई भी एक मार्जिन अगर नेगेटिव है तो मेरा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। सो दिस इज द व्हाट एक्चुअली अ बोडे प्लॉट लुक्स लाइक। सिमिलरली एक नाइक्विस्ट प्लॉट होता है। नाइक्विस्ट प्लॉट के केस में क्या होता है कि जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास, उसका ओमेगा वेरी करके हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आता है जो कि आपको ये पर्टिकुलर ऐसा ग्राफ दिख रहा है। देखो जहां मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, ये जो लाइन कर्व जाके फिर नीचे स्ट्रेट जा रही है, ये मेरे सिस्टम का नाइक्विस्ट ग्राफ है। और हमें ये चेक करना होता है कि जब हम नाइक्विस्ट प्लॉट बना रहे हैं, क्या वो -1 पॉइंट को एक्स एक्सिस पर एनसर्कल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ये जो फर्स्ट केस आप देख रहे हो, इसमें ये -1 पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा, तो ये सिस्टम स्टेबल है। दूसरे केस में आप देखो कि मेरा जो सिस्टम का नाइक्विस्ट प्लॉट था वो -1 पॉइंट के बियॉन्ड चला गया है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, और इस केस में हम ये स्टेबिलिटी मार्जिन जो हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली दिस इज पर्टिकुलर दिस एंगल दैट यू सी ओवर हियर, हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट बनाया, ठीक है, ये ग्राफ बनाया। अब एक पॉइंट हमने लिया ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे जहां पर टच करेगा, वहां से हम गेन मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। और ये जो बाउंड्री थी हमारी -1 वाली, इस -1 पे हमने एक सर्कल बनाया। उस सर्कल पे जहां मेरा नाइक्विस्ट प्लॉट कट करेगा, वहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, और ये जो एंगल फाई बनकर आ रहा है, ये मेरा फेज मार्जिन होगा। ठीक है, सो दिस आल्सो वी आर गोइंग टू डू इन द लास्ट लेक्चर कि ये कैसे बनाया हमने, बट दिस इज व्हाट रफली अ नाइक्विस्ट प्लॉट एक्चुअली लुक्स लाइक। ये ऐसा कुछ हम ओमेगा को वेरी करके ग्राफ बना लेते हैं और चेक करते हैं कि ये ग्राफ -1 पॉइंट को एक्स एक्सिस पर एनसर्कल करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो सिस्टम स्टेबल है, अगर एनसर्कल कर लेता है, एनसर्कल का मतलब अगर -1 पॉइंट इसके अंदर आ जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है।
ठीक है, और इसी से हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में भी हमेशा अगर गेन और फेज मार्जिन पॉजिटिव है तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर गेन और फेज मार्जिन नेगेटिव है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। Okay, so like this, we get the information of relative stability from the frequency domain analysis.